Okay, so good morning all. Myself Sushma Hattarki. I am course coordinator of PGCP ET's course. I have 9+ years of experience, and I am going to conduct your two modules named as one is a operating system and another one is a computer fundamental, or we can say it as a fundamental of computer network. So all these part I will going to conduct. Okay, so without wasting much more time, just tell me one thing, कि how many of you are from the computer background and how many of you are from the civil and mechanical or electrical background? Just raise your hand कि कितने लोग CS के नहीं है, मतलब ENTC वगैरह चलेगा बट मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल. कितने लोग हैं? Okay, so I think nobody is there. Okay, so everyone is from computer background, so no problem. So now we are going to start with our first module, that is operating system. Operating system first हम start करेंगे, and after completing the part of operating system, we'll start with the next module, computer fundamentals. ठीक है? So before directly starting the operating system, first we'll see what is mean by computer system. I think everyone use computer, so everyone knows what is mean by computer system. Can anyone tell me where you use computer? What is mean by computer? क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं? Yes, guys, this is a little bit theory module, not like C++. कोडिंग वगैरह इसमें नहीं है, so session must be interactive. वन वे नहीं होना चाहिए. Yes, if anyone asks you what you know about the computer, then what you will told them? It is the hardware plus software, right? Hardware plus software, right? So hardware means what? It consists of input devices as well as output devices, right? Input devices as well as output devices. There are multiple input devices and output devices are present. Then in software, again there are two types of software. One is a system software and another one is a application software, right? So these are the two different types of softwares. And if we combine this hardware plus software, then we'll get the computer system, right? तो see, कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम अगर हमें किसी ने पूछी, then what is computer? Input devices are there, input units are there, input unit is there, then storage to store the data whichever we want to store, or if we are giving some instructions to the computer, then that instructions will get stored in storage unit, and after implementing or after processing the request, we will get the output. So for so to do the any process, we require control unit and arithmetic logic unit. Suppose I given the input 2 plus 2, simple. Then what it will do? First, it will take the 2 from input unit and it stores somewhere in storage unit. Then when we enter the plus symbol, then it goes to the storage unit. Then it will get realized that there is addition.
there is a addition. Then control unit and arithmetic logic unit do the required things. वो एडिशन कर देंगे उसकी, बट अगेन जब हम 2 प्रेस करेंगे देन इट विल गेट रियलाइज कि 2 + 2 करना है, देन आउटपुट इज 4. So there are multiple input units as well as output units. And if we talk about the storage unit, then also there are multiple storage units. बहुत सारे स्टोरेज के यूनिट्स है जिसमें कि मेन जो है दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज. So basically there are two types of storages. One is a secondary storage, another one is a primary storage. And control unit is used to control the signals whichever we are sending or whichever processes we are going to do, whichever activities we are going to do. So to control all these things, control unit is there. And then arithmetic logic unit is there. So what arithmetic logic unit will do? It can process the content. And by using all the things, we will get the output from any other output units. Clear? So this is block diagram of computer. Then we'll see in detail how many types of there. You see, it is a pyramid type. Pyramid. So in this pyramid, if we see, horizon is the capacity. Horizontal line जो दिखाई दे रही है, it is a capacity. Okay, so कहाँ पे थे हम? Yes. So capacity is horizontal and vertically speed and cost per bit. So on basis of these three factors, this pyramid is stand. So if we see the base of this pyramid, that is secondary memory or mass storage. Secondary memory और mass storage. तो secondary memory में क्या आएगा? Yes, बताओ. Secondary memory में क्या होता है? कौन से डिवाइसेस आते हैं? Which devices are present over there? लिखा भी है यहाँ पे. हार्ड डिस्क. HDD जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, this is the one of the type of secondary memory because it can store the large amount of data. That data in the form of audio, video, content, document, anything. But if you want to store the large amount of data, then hard disk drive will help. And on top of that, primary memory is there, which we called as a main memory. And the example of primary memory is RAM. Without RAM, we are not able to switch on the computer. Without RAM, we are not able to start switch on the computer. कर ही नहीं सकते. क्यों मैं आगे बताऊंगी आपको फिर से. ठीक है. So RAM is the basic necessary thing or basic necessary component for computer memory. That's why it is called as a main memory or primary memory. Then on above that, cache memory is there. So cache memory, it is the chip. We can say it is a chip like microprocessor or microcontroller, but it is again store some amount of data. It can store the some amount of data. See, basically what happened, if we consider it as a motherboard, then microprocessor is there, which is the brain of computer, right? Microprocessor. And to near to that microprocessor, small caches are placed. Basically, there are 3 caches
and these are denoted by L1, L2 and L3. So it can store the small amount of data. Okay. Then on above that, CPU registers are there. Registers are the smallest unit of data storage. It can also store the very small amount of data. So if we talk about the capacity, then hard disk drive having the largest capacity than the others. And if we talk about the speed, then hard disk drive is having the low speed as compared to other, whereas register having the high speed. Registers having the high speed, as well as RAM is also having the high speed than hard disk drive. And cost wise, hard disk drive is cheaper than others. How? If we need to purchase any RAM of 8 GB suppose, then it will cost near about 4,000 rupees. It requires 4,000 rupees. And same way, if we want to purchase the 500 GB hard disk drive, then also it will charge 4,000 or near about that. It means 8 GB RAM is also costing high than the 500 GB. 500 GB कहाँ पे और 8 GB कहाँ पे? There is huge difference. But still 8 GB RAM is costly than 500 GB hard disk. And because of that, this pyramid is shown like this. Hard disk drive is base. Above that RAM is there. Then SRAM and register. So I will show you cache memory, how we can check. So just 1 minute, I will share my task manager with you. See here. Yes. So these are the processes which are running. ये भी हमें बाद में देखना है. Then यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले टैब में इफ वी चेक हियर, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है. At the bottom line, then L1 cache is there, L2 cache and L3 cache. So these are the chips we can store the small amount of data. So see, L1 cache store 256 KB, L2 store 1 MB and L3 6 MB. So they can store the large amount of small amount of data. Okay, so there are 3 cache memories are present over there. You can check in your task manager also. क्लियर है ये वाला पार्ट? इस पे क्वेश्चन आ सकता है. यस, नो. इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क. Yes, are you getting my point? Give me reply, guys. Yes, okay. Okay, good. ठीक है. Then next, then memory management. There are various devices are present over there to store the different types of memory. So basically, memory is divided in 2 types: primary memory and secondary memory. Then primary memory is again divided in 2 types, that is RAM and ROM. So RAM is having DRAM and SRAM, means dynamic RAM, which is our RAM chip, and DRAM means cache memory. Sorry, उल्टा हुआ क्या? हाँ, DRAM means हमारी RAM वाली chip and SRAM means cache वाली chip. DRAM and
SRAM, static RAM and dynamic RAM. Then ROM again divided in three types: PROM, programmable ROM, EROM, erasable ROM, and electrically erasable ROM, read only memory. Electrically erasable memory. Then secondary memory is there. So secondary memory is again divided in two types: magnetic memory and optical memory. But nowadays we are not using these kind of memories, because nowadays we are using generally hard disk drive and pen drive. Right? CD, DVD is outdated and floppy disk is also outdated. But in some computers, the space for optical memory is present. If we want to add that CD drive in that, then we can able to add. तो ये कुछ में रहता है, कुछ में नहीं रहता है. Then computer buses. कंप्यूटर बसेस. सो कंप्यूटर बसेस का मीनिंग क्या है? वी नो ऑन मदरबोर्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क की केबल कनेक्ट किया. हार्ड डिस्क इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड, इट इज कनेक्टेड वाया केबल. केबल के लिए सॉकेट रहता है, उससे वो कनेक्टेड रहती है. बट अदर कंपोनेंट्स आर देयर, रजिस्टर्स रहते हैं कई सारे. तो टू कनेक्ट ऑल दिस विथ ईच अदर, कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट है. वी नीड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन. So that connection is known as buses. So that connection is known as buses. And also the other way, bus is called as the information traveler. So bus is a common pathway through which information flows from one computer component to another. One computer component to another. So see, CPU is the brain of computer, right? And all other things, all other components are directly connected to CPU. But if you see in the connections, like RAM is connected to CPU using three types of buses. So one is a control bus, one is a data bus, and one is a address. One is a RAM, which can connected to address bus, data bus, and control bus. Now address bus means what? Address bus means on RAM we required some space to add that content, right? वो space हमें चाहिए. Suppose ये RAM है, लॉजिकली बता रही हूँ मैं, एंड रैम पे ऐसे पार्टीशंस है, ठीक है. एंड इफ आई वांट टू ऐड सम डेटा इन दैट रैम, देन इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस. अगर 16 GB रैम है, देन 1 GB मेरा डेटा है, तो इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस. so this all space under the that data, right? So for that, to identify at which location our data is getting stored, address bus is present. But at the same time, when that process or that task goes towards the CPU for execution to complete that process, at that time, does it require the addresses? No, because generally CPU can execute a single process at a single time. One process in at one time. For so CPU does not require any type of address, because it cannot able to store any type of data. And because of this, address bus is a unidirectional. See, direction इसका देखेंगे तो डाउनवर्ड में ही एरो है. जब वो डिवाइस के पास जाता है, कंपोनेंट के पास जाता है, एट दैट टाइम ओनली देयर इज ए एरो. देयर इज नो एरो एट दिस साइड. यहाँ पे एरो है क्या? नो.
So address bus is a unidirectional, whereas data bus and control bus, these two types of buses are bidirectional. Means control signal goes from RAM towards the CPU and again CPU towards the RAM. And control bus is again same. Data bus is by default bidirectional because data can travel from the component to CPU and that CPU to that respective component. And control signal is required to control that data. That's why control bus is also bidirectional. So computer buses is a busway or common pathway through which information flows from one computer component to another. Then see, except the generally कंप्यूटर में क्या होता है, see what happened. This is the hard disk drive. Then microprocessor is there. Hard disk drive is not able to communicate directly with the microprocessor and RAM. So we've seen these components. So hard disk is very important. RAM is also important. Microprocessor is also important. And except these, two other components are important, which is called as a south bridge and a north bridge. These two components are important. North bridge and south bridge. तो क्या होता है नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज? तो नॉर्थ साइड के जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी सीपीयू से कम्युनिकेट करेंगे, तो ऑल दीज आर कनेक्टेड टू नॉर्थ ब्रिज. एंड साउथ ब्रिज क्या होता है? द कंपोनेंट्स विच आर कनेक्टेड एट द साउथ साइड, these are connected to south bridge. South bridge will control all these components. So computer buses में these two components plays important. Then ये जो है बसेस, पीसीआई बस वगैरह, ये देखते हैं अभी. सो आईएसए बस. आईएसए बस का मीनिंग क्या है? आईएसए बस नहीं है ये, आईएसए. इट इज शॉर्ट फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर. आईएसए वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम. कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वाज ओरिजिनली 8-bit बस एंड लेटर एक्सपेंडेड टू 16-bit बस इन 1984. 8-bit और 16-bit का मतलब क्या होता है? पैरेलली दे कैन सेंड दी 8 bits. तो 16-bit if they are sending pretty high. So when this bus was originally released, it was proprietary bus because it was invented or introduced by IBM. So which allowed only IBM to create peripherals and actual interface. Later, however, in the early 1980s, the bus was being created by other clone manufacturers. So बाद में क्या हुआ? After 1980s, अदर क्लोन मैन्युफैक्चरर्स ने उसका क्रिएशन स्टार्ट कर दिया और बाद में वो मार्केट में आ गए. तो ये क्या है आईएसए? सपोज हम अगर कोई लैपटॉप न्यू परचेस करने जाते हैं, एट दैट टाइम व्हाट विल आस्क टू दैट एम्प्लॉय, और वहां पे जो सेलर होगा क्या पूछते हैं कि एक तो रैम कितनी है, हार्ड डिस्क की क्या साइज है और प्रोसेसर कौन सा है. ठीक है. और उसी के साथ विल आस्क वन मोर क्वेश्चन कि रैम एक्सपांडेबल कितनी है. वो बताता है ना 8 GB इनबिल्ट है एंड यू 8 GB मोर, ऐसे बताता है, राइट? सो दैट 8 GB एक्स्ट्रा ऐड करना मतलब क्या? नया खरीद के कंप्यूटर में ऐड करना है, बट ऐड करने के लिए दैट स्पेस और दैट सॉकेट शुड बी अवेलेबल. इफ दैट इज नॉट अवेलेबल देन इट इज नॉट कंपेटिबल, राइट? अगर मेरे मशीन में 8 GB एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए स्पेस ही नहीं है, देन मैं ऐड कर सकती हूँ क्या? नो. So if I want to add, then if there is a space available,
एक्सपांडेबल अगर है, एक्सपांडेबल का मीनिंग ये है कि वहां पे स्पेस अवेलेबल है। तो इफ इट इज एक्सपांडेबल देन वी कैन ऐड, राइट। तो पहले, अभी 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 तो ये वाला नहीं यूज करते, बट अर्लियर इन अर्लियर डेज दिस काइंड ऑफ सॉकेट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे रैम ऐड करना पड़ता था, एक्स्ट्रा है, या तो फिर ओल्ड वाला खराब हो गया है, जो भी है। तो इफ यू वांट टू ऐड मोर देन यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? देन nowadays we are using the PCI type, that is peripheral component, introduced by Intel in 1992, and it is 32-bit or 64-bit expansion bus. So it is most popular expansion bus used in today's computer. तो ये जो है, ये इस टाइप का सॉकेट अभी अवेलेबल रहता है मदरबोर्ड पे। तो इफ इट इज अवेलेबल देन दिस इज, ये एक्चुअली रैम का नहीं दिखाया उन्होंने, HDMI का दिखाया है, यहाँ पे देखो दिखा है। तो इफ इट इज अवेलेबल, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, नॉट ओनली इट इज यूज्ड फॉर लैम, इट कैन बी यूज्ड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड के लिए भी हो सकता है, या NIC कार्ड जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए भी हो सकता है, HDMI के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो जस्ट ये ऐसा हम खरीद के लाएंगे और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो दिस इज PCI, दिस इज PCI। देन आफ्टर दैट, ये तो हो गया कंप्यूटर के रिलेटेड। बट इफ आई वांट टू ऐड एक्सपांड रैम इन अ लैपटॉप, देन लैपटॉप की साइज कंपैटिबिलिटी के हिसाब से इतना बड़ा सॉकेट होगा क्या वहां पे, इतनी बड़ी रैम या तो फिर HDMI इंसर्ट कर सकते हैं क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल ना। So for that purpose, PCMCIA, that is Personal Computer Memory Card इंटरनेशनल एसोसिएशन ने ये क्रिएट किया है। और ये जो है, ये हार्डवेयर इंटरफेस क्रिएट करके देता है, जो कि साइज में क्रेडिट कार्ड जैसा है, साइज में क्रेडिट कार्ड जितना ही होता है। सो इट इज द एक्सपांशन कार्ड फॉर लैपटॉप, एक्सपांशन कार्ड फॉर लैपटॉप। तो क्या क्या देखा हमने? कंप्यूटर बस क्या होती है, बस में नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, देन ISA, PCIM, PCM, CIA। so these are the basic fundamentals of computers। क्लियर है यहाँ तक? यस, यस, ओके। ओके, देन नाउ टेल मी, डू यू नो बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर? बूटिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है? यस, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस बिफोर स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, और स्विचिंग ऑन एंड ऑफ लाइक शटडाउन। यस, राइट। तो क्या होता है,
क्या होता है बूटिंग प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर ऑन होने के बाद वो कौन कौन से पेज से जाता है, कौन कौन से पेज से सफर करता है, दैट इज कॉल्ड एज ए बूटिंग प्रोसेस, राइट। तो जनरली आपको लिनक्स बूटिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहली जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज ए पोस्ट प्रोसेस। पोस्ट प्रोसेस में क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसमें वो चेक करता है पावर ऑन होने के बाद कौन कौन से कंपोनेंट ऑन है और कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ है। जैसे कुछ मदरबोर्ड का कुछ कुछ पार्ट में प्रॉब्लम है, so that will identify in post process, power on self test। देन उसके बाद प्रोसेस जो होती है दैट इज बायस प्रोसेस, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट में क्या आएगा, एक तो आएगा रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, देन माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो इतना बेसिक आउटपुट में क्या क्या है, कौन कौन सा कनेक्टेड है, कौन कौन सा नहीं है, वो चेक करता है। बट बिना रैम के मशीन कभी भी ऑन नहीं होता है। बिना हार्ड डिस्क के हो सकता है बट बिना रैम के नहीं होता है। बट बिना हार्ड डिस्क में कंडीशन है, वो आगे मैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बताऊंगी आपको। बट बिना रैम के कभी भी मशीन ऑन नहीं होगा, ठीक है। देन पहले पोस्ट की प्रोसेस हो गई, पहले देन बायस की प्रोसेस हो गई। देन इसके बाद वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि परमानेंटली स्टोर होती है। वी नो कि हार्ड डिस्क इज ए परमानेंट स्टोरेज एंड रैम इज ए टेम्पररी स्टोरेज, राइट। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, परमानेंट स्टोरेज में ही स्टोर रहेगा ना। टेम्पररी में रख के क्या फायदा, वो तो चला ही जाएगा, राइट। बट मैंने एक चीज अभी अभी आपको बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, कि हार्ड डिस्क जो है ये डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, मैंने बोला था ना। तो अगर वो डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता है तो फिर इंफॉर्मेशन या तो फिर मशीन ऑन कैसे होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने के बाद इसको पता तो चलना चाहिए ना माइक्रो प्रोसेसर को। तो उसके लिए जब ये प्रोसेस होती है बूटिंग की, एट दैट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर स्टोर इन हार्ड डिस्क ड्राइव, इट इज लोडेड ऑन टू रैम, ये रैम पे स्टोर हो जाती है। तो इट डज नॉट मीन कि वो रैम पे ही स्टोर रहती है। वंस यू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर देन दैट होल रैम विल इरेज, रैम का सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। देन वो रैम से जाती है माइक्रो प्रोसेसर के पास, और इसी में हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है। ये यहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, क्लियर। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होती है हार्ड डिस्क से रैम पे। तो ये प्रोसेस होती है बायस के बाद, ये प्रोसेस होती है, अरे ये प्रोसेस होती है बायस के बाद। तो पोस्ट, पहले वो आएगा पोस्ट, पोस्ट के बाद आएगा बायस, एंड बायस के बाद ओएस लोड्स ऑन रैम, ओएस लोड हो जाएगी रैम पे, क्लियर। तो ये होता है बूटिंग प्रोसेस, ये होता है बूटिंग प्रोसेस। तो ये पॉइंट नोट करके रखो बूटिंग प्रोसेस वाला।
ठीक है। नाउ द अनदर थिंग, एज आई टोल्ड यू कि कंप्यूटर सिस्टम is nothing but the combination of hardware plus software, right? So in that hardware part, we seen input devices, and output devices, right? And in software part, as I told you, there are two types of software, that is system software और दूसरा कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है? एनीवन नोट्स? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द बेसिक सॉफ्टवेयर, विदाउट दैट सॉफ्टवेयर any computer, any machine, any electronic device is not able to on. System software basically controls the overall basic of computer. ओके ठीक है सुप्रिया। तो सिस्टम, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि नया मोबाइल खरीदना है, आप जाओ और लेके आओ, तो जब आप शॉप पे जाओगे, वहां से मोबाइल खरीदोगे, और आपको उसने बिना ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बिना एंड्रॉइड के मोबाइल दे दिए, तो वो कुछ काम क्या है क्या? कुछ काम का नहीं है ना। मैंने नया लैपटॉप खरीदा है बट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं की है, विंडोज 10 नहीं है, विंडोज 11 लिनक्स कुछ भी नहीं है, तो मैं उसका यूज कर सकती हूँ क्या? नो। It means system software is the basic requirement and which is nothing but the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना उसके हम मशीन ऑन ही नहीं कर सकते, हम वो डिवाइस यूज ही नहीं कर सकते। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट? एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, जो भी एप्लीकेशंस हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के बिना मोबाइल यूज कर सकते हैं? व्हाट्सएप के बिना मोबाइल यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बेसिक मोबाइल का फंक्शनिंग क्या है? कॉलिंग है ना, राइट? तो बिना व्हाट्सएप, बिना इंस्टाग्राम वी कैन एबल टू यूज अवर मोबाइल्स, यूज आवर स्मार्टफोन्स। बट वही अगर बिना एंड्रॉइड के यूज करने के लिए बोला तो नहीं कर सकते। सो जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। तो ये डिफरेंस होता है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। So the thing which are going to see now, that is the operating system, which is called as a system software. And without operating system, we are not able to use any electronic device. Okay, so let's start with the operating system. So operating system is the resource manager. That is, it can manage the resource of a computer system internally. The resources are processors, memory, files, and input-output devices. In simple terms, an operating system is the interface between the user and the machine. तो किस लिए चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम? इट कैन गिव्स अस अ जीयूआई या सीएलआई जो भी है, बट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट डिवाइस, और वो डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। तो जैसे अभी डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है,
कंप्यूटर हार्डवेयर है यहाँ पे, अबाउट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया कंप्यूटर हार्डवेयर पे। देन एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी इंस्टॉल सम सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, मतलब जैसे क्रोम है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, या फिर मोजिला फायरफॉक्स इज ऑल्सो दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम, या नोटपैड प्लस प्लस है। तो ये जो है दैट इज द यूजर्स रिक्वायरमेंट, तो वो हमने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड की है। बट बेसिकली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया जाता है। एंड दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन। इन सेंस हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजफुल, क्योंकि हमारे पास हार्ड डिस्क है, रैम है, सब कुछ है, प्रोसेसर भी है, सब है, तो उसको यूज करना है हमें, उसको यूज करना है तो उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फंक्शनैलिटी देती है रिसोर्सेस को यूज करने की। सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। बेसिक क्लियर है? नाउ विल सी द मैं उसके टास्क कौन से होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से है। इसकी डेफिनेशन एक बार नोट कर लेना, और चाहे तो ये डायग्राम की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट डेफिनेशन इट गिव्स द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी या कुछ कुछ लाइंस बताऊंगी, वो एज इट इज आप लोगों को नोट करके लेना है। नोट्स आई विल गिव यू, बट स्टिल यू नीड टू नोट दैट पॉइंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क में क्या कौन कौन से टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है? तो फर्स्ट इज द प्रोसेसर मैनेजमेंट। नाउ कुछ चीजें हैं जो अभी हमें इसके आगे यूज करनी है, जैसे इफ वी आर असाइनिंग सम टास्क टू माइक्रो प्रोसेसर, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जीयूआई जो हमें दिख रहा है वहां पे टास्क असाइन करते हैं। बट इंटरनली अगर हम सोचेंगे कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, तो हम जो असाइन कर रहे हैं वो हार्ड डिस्क से डेटा उठा के रैम को दे रहा है, और रैम माइक्रो प्रोसेसर के पास सेंड कर रहा है। छोटे छोटे अगर टास्क है तो वो डायरेक्टली रैम पे जा रहे हैं, बट बेसिक में क्या है कि कोई किसी ना किसी स्टोरेज यूनिट से वो जा रहा है रैम पे, और रैम बात कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर से, रैम से डेटा आगे सेंड हो रहा है। ठीक है? तो वो जो है कि ये टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क परफॉर्म करना है, तो उसको या तो हम बोलेंगे जॉब, उस प्रोसेस टास्क को बोलेंगे जॉब, और वी कैन कॉल इट एज ए प्रोसेस। वी कॉल इट एज ए प्रोसेस भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है? तो इसके आगे जब भी मैं बोलूंगी जॉब या प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। सो प्रोसेसर मैनेजमेंट मीन्स which involves putting the task into order and pairing them into manageable size before they go to the CPU. It means कि if we assign some process, if we assign some task to microprocessor, but directly नहीं assign कर सकते ना, we need to take help of RAM। तो RAM हमें हेल्प करके दे रहा है, वो असाइन करने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो रहा है, उसके पास रैम के पास एक ही टास्क है क्या? नो, देर आर मेनी मोर टास्क, राइट? तो उसमें से कौन सा टास्क सिलेक्ट करना है, बिकॉज देर इज ए क्यू ऑफ टास्क, एंड आउट ऑफ दैट क्यू इट नीड टू सिलेक्ट सिंगल प्रोसेस और सिंगल लास्ट टास्क टू एग्जीक्यूट। तो ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है,
या कौन से प्रोसेस के बाद कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, इसकी जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोसेसर मैनेजमेंट। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सिलेबस है, उसका आधा पार्ट जो है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट है। उसका आधा पार्ट जो है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट है, क्योंकि इसमें इतनी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि हमने कभी सोची ही नहीं है, और क्वेश्चंस भी इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आते हैं। तो जो पॉइंट्स मैं जब बता रही हूँ तब उसको सिर्फ स्टार करके रख लेना, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। ठीक है। देन देन द सेकेंड टास्क इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में अगेन सेम है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो भी डेटा है, दैट डेटा कैसे हो रहा है, वो यहाँ पे हार्ड डिस्क है, हियर रैम इज प्रेजेंट and microprocessor is there. So our data is loaded from hard disk to RAM and RAM to microprocessor, right? तो हार्ड डिस्क से रैम के पास जा रहा है, रैम से माइक्रोप्रोसेसर के पास जा रहा है। माइक्रोप्रोसेसर हमने वहां पे बसेस में एक पॉइंट देखा था, एड्रेस बस। सो एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोप्रोसेसर, राइट? तो क्या हार्ड डिस्क में वो किसी लोकेशन पे है, दैट प्रोसेस इज लोडेड इनटू रैम, तो रैम पे अगेन कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड इफ दैट प्रोसेस गोज टूवर्ड्स द माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोप्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट कर लिया, देन दैट इज ओके। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि दैट प्रोसेस which is coming from the RAM will not able to execute because there are various reasons, like it requires some input output devices, it requires help of any other process. There are various reasons that we will see in the next part. But now just understand that if that process is executed, then there is no problem, it will execute and finish its execution, it will goes out from the microprocessor. But suppose it is not executed, then what will happen? Then microprocessor is not able to uh, stay with that process for longer duration, because if microprocess will engage with single process for longer time, then on RAM there are many more processes which are in waiting state. So what will happen, the process which is not able to execute, it will come back towards the RAM, and again it will occupy some space on the RAM. Whenever any process is coming towards the RAM, then by default it requires some space to store, right? So the place, the address which it can occupy on the hard disk drive, on RAM, and again on the RAM, so these all things need to manage, and it is managed by the operating system. And this is the only reason why we need हाई कैपेसिटी रैम। हम जब भी कुछ लैपटॉप या हो या फिर मोबाइल हो, जब हम न्यू परचेस करने जाते हैं, एट दैट टाइम फर्स्ट थिंग विल आस्क कि कितनी रैम है। व्हाई वी आस्क रैम? बिकॉज एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, इट विल लोडेड ऑन द रैम। तो रैम का जितना स्पेस है, इफ सपोज 16 GB रैम इज देयर, then out of this 16 GB, operating system will occupy some space which is not for our use. It will occupy by operating system itself, because without operating system, computer is not able to access or use. So this is the basic requirement. Then the remaining space which is present on the RAM, this is for our use only. And that's why whenever we purchase new laptop or new mobile, at that time the first thing we'll ask that RAM की capacity कितनी है. If larger RAM is there, then number of processes can able to occupy that space. And if space is less, then again same problem
कि वो मशीन हैंग हो सकता है, बिकॉज लिमिटेड स्पेस इज प्रेजेंट ऑन दी रैम. So to control or to manage all these things, operating system will help. So this is the second major task of operating system. And as I told you, processor management occupies the half part of operating system. Then the remaining half part is based on the memory management. तो इसको हमें पूरा डिटेल में देखना है. So memory management, which coordinates data to and from RAM, that is random access memory, and determines the necessity for virtual memory. Then second, device management, which provides interface between connected device. तो डिवाइस जो भी उसके साथ कनेक्टेड है, वो चाहे प्रिंटर हो, सर्वर हो, विच एवर द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, उसको इंटरफेस देने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. मीन्स इफ सपोज अभी मेरे लैपटॉप को प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, एंड इफ आई वांट टू ऐड द प्रिंटर, देन पहले प्रिंटर का ड्राइवर ऐड करेंगे, देन उसका जीयूआई दिखाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, सो दैट आई कैन एबल टू एक्सेस दैट प्रिंटर. देन नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस एज आई टोल्ड यू कि डेटा स्टोरेज जो भी हम हार्ड डिस्क पे कर रहे हैं, रैम पे कर रहे हैं, कैशे में कर रहे हैं, दैट ऑल थिंग विल मैनेज बाय operating system. Then application, the application whichever we required, we can able to download and install that. तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए भी जीयूआई तो उसका मिलना चाहिए ना. सपोज अगर मेरे पास अभी 16 GB 16 बिट विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर लाया जो कि 8 8 बिट के लिए कॉम्पेटिबल है, तो इट डज नॉट मीन कि वो 16 बिट के लिए भी कॉम्पेटिबल हो. तो बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या होता है, वेरी होता है. 16 बिट है तो 16 बिट वाला ही एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं. जैसे आईफोन के लिए, आईफोन में कुछ इंस्टॉल करना है तो हम उसी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना. हमारे रेगुलर सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड वाले सॉफ्टवेयर वहां पे नहीं चलते. तो सेम लाइक एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, which allows standard communication between software and your computer. Then user interface, which allows you to communicate with your computer. तो यूजर इंटरफेस देने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. So these are some basic management tasks of operating system. So just note down these first two in detail, and rest just note down the title. Okay, I will come in 2 minutes. नोट कर लेना तब तक.
Okay, I am back. Yes, done. Yes, okay. Then next is types of operating system. Next is types of operating system. So let's see which are types there. So there are six types of operating system. So one is a batch operating system, second is multi-programming, third is time sharing, fourth is distributed, fifth is network operating system, and last one is real-time operating system. तो फर्स्ट विल सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? So in batch operating system, see what happens. Uh, there is operating system which can sorting the jobs. Which can sorting the job means what? Wait, I will explain it on Paint. I'm sharing my Paint window. Yes. So suppose there are multiple jobs. Job 1, job 2, job 3, job 4, job 5 till job 100. Okay. Then these jobs, as per our rule or as per operating system, these jobs will goes towards the microprocessor for execution one by one. जो भी उसकी प्रायोरिटी होगी, जैसे भी उसका सीक्वेंस डिसाइड होगा उसके हिसाब से. देन अगर मान लो जॉब 1 में मेरी रिक्वायरमेंट है, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है सपोज. जॉब 1 में है, जॉब 3 में है, जॉब 5 में है, जॉब 10 में है. ऐसे 6 to 10 जॉब्स रिक्वायर्स प्रिंटर्स. देन क्या होगा कि पहली पहली जॉब जाएगी, उसको प्रिंटर चाहिए, वो प्रिंटर की रिसोर्स की रिक्वायरमेंट डालेगा. देन वो मिल जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. देन सेकंड जाएगा, उसको और कुछ चाहिए, फिर और कुछ उसको असाइन करके उसको एग्जीक्यूट कर देंगे. फिर से तीसरा जाएगा, फिर से प्रिंटर चाहिए, फिर से प्रिंटर उसको मिलेगा, देन वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. देन फोर्थ वाला जाएगा, उसको किसी और रिसोर्स की जरूरत है, तो वो किसी और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट डालेगा, फिर वो उसको मिलेगा. तो ये क्या हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसमें चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली. तो उसमें कहीं ना कहीं पे इट रिक्वायर्स सम टाइम टू असाइन दैट रिसोर्स. तो इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी डू लाइक दिस. जॉब 5, जॉब 10, इसका एक बंच कर दिया. एंड सेकंड में क्या किया, सेकंड बंच किया, जॉब 2, जॉब 4, जॉब 6, और जो भी रिमेनिंग रहेंगे उसका और एक बंच किया. तो इफ वी क्रिएट दिस बंच एंड देन इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट दैट, देन इट इज इजी. इजी है ना. तो ये जो क्रिएट हो रहा है, ये जो क्रिएट हो रहा है, ये जो हम बंच कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए बैच. दिस इज कॉल्ड एज ए बैच. एज पर द रिक्वायरमेंट we can able to create a batches, and then this is called batch 1, this is called batch 2, and
it can send towards the microprocessor or on load on the RAM. Then it will send to microprocessor for its execution. Then it is easy. So this is known as batch operating system. तो ये जो है sorting, its sorting is done by operating system, and also at the same time human involvement is there. Human involvement is also there. So see, job 1, 2 till job n, operating system is there and it can create the batches. Then these batches goes towards the CPU for its execution. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? This type of operating system do not interact with the computer directly. There is an operator which takes similar jobs having same requirement and group them into batches. It is the responsibility of operator to sort the jobs with similar needs. So यहाँ पे ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, मीन्स ह्यूमन ऐड हो गया है, and because of that there are some advantages and disadvantages there. Advantage में क्या है? It is very difficult to guess or know the time required by any job to complete. Multiple users can share the batch system. Then the ideal time batch system is very less. Ideal time, yes, ideal time ये क्या होता है? Ideal time, कभी सुना है वर्ड आइडियल टाइम? यस, सुना है। क्या होता है आइडियल टाइम? एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। इट सपोज वी हैव 3 आवर क्लास, ठीक है? 3 आवर का क्लास है आज मेरा, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ। देन इन बिटवीन दैट 3 आवर्स, नहीं, फॉर 3 आवर्स और फॉर 1 आवर इंस्टीट्यूट पेज मी 1000 रुपीज, राइट? ऐसे गेस करो, दे नहीं रहे, गेस करो। तो 1000 रुपीज पर आवर, ठीक है? तो 3 आवर के मुझे कितने मिलेंगे? 3000, 3000 रुपीज, राइट? तो मेरा टाइम अगर है 10 to 1, मुझे पढ़ाना है 3 घंटे। बट सपोज आई, व्हाट आई डिड, मैंने 10 से 1 पढ़ाया, सॉरी 10 से 11 तक पढ़ाया। देन 11 से 12 कुछ भी नहीं पढ़ाया। देन अगेन 12 to 1 पढ़ा दिया। तो क्या होगा? ये जो टाइम है इसका पैसा मुझे मिलेगा? पैसा तो मिलेगा ना, 3 घंटे का प्रॉमिस किया है तो 3 घंटे चला रही हूँ। बट मैं कुछ काम कर रही हूँ क्या? नो, आई एम जस्ट सिटिंग। और वो जो है कि मैं बिना कुछ काम किए जस्ट सिट्स, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल टाइम। तो अगर सीपीयू के पास बहुत सारे टास्क है बट सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, एक के बाद एक उसके पास टास्क जाने चाहिए। अगर टास्क नहीं भी जा रहा है तो भी वो खाली बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो सिचुएशन हमें नहीं चाहिए। अगर वैसी सिचुएशन आती है देन दैट इज कॉल्ड एज ए आइडियल टाइम। If CPU is free and not doing any or not executing any process, then that time is called ideal time. और जैसे अभी मेरे केस में मैं 11 to 12 पढ़ा नहीं रही थी, 1000 फ्री में ले रही थी, तो वो क्या है? मेरा आइडियल टाइम है 11 to 12 वाला। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट?
क्यों? क्योंकि मुझे कंटिन्यूअसली पढ़ाना है, दैट इज माई जॉब। तो वैसे ही कंप्यूटर्स में आइडियल टाइम नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम माइक्रो प्रोसेसर नीड्स टू एंगेज। और ऐसा टाइम रिड्यूस कैसे करे, आइडियल टाइम, उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एडवांटेज है कि वहां पे आइडियल टाइम नहीं होता। तो द आइडियल टाइम बैच सिस्टम इज वेरी लेस। Then it is easy to manage large work repeatedly in batch system. Why? We created a batches as per the requirement. That's why large work repeatedly करने से वो बच जाता है और एक साथ ही सेम टाइप के काम वो परफॉर्म करता है। Then disadvantages, the computer operators should be well known with batch system. जो भी कंप्यूटर का ऑपरेटर है जो सॉर्टिंग कर रहा है, जो प्रोसेसेस को सॉर्ट कर रहा है और बैच में डाल रहा है, उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज, और उसको थोड़ा कम नॉलेज है, देन दिस इज द डिसएडवांटेज। द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद दिस बैच। देन बैच सिस्टम आर हार्ड टू डिबग, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सेम टाइप आर इंक्लूडेड इन सिंगल बैच, एंड इफ दैट बैच इज स्टक, then it is hard to identify which job creating the problem. It is sometimes costly. The other jobs will have to wait an unknown time if AB job pay. In one batch, if there are number of jobs are present, and in between that jobs, if single job is not able to execute, then it is hard to identify कि कौन सा जॉब फेल हुआ है, एंड अनटिल एंड अनलेस वो जॉब एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक दूसरे पे प्रोसेसर शिफ्ट नहीं करेगा। तो वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। तो एग्जांपल इज पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिर्फ नोट कर लो, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का चाहे तो डायग्राम नोट कर लो। इसमें भी क्या है, एडवांटेज में ये सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला एडवांटेज, और इसमें फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है डिसएडवांटेज। और सेकंड वाला भी नोट करके रखो, क्योंकि कौन सा टाइप है हार्ड डिबग के लिए वो पूछा जा सकता है। बट इतने बाकी के पॉइंट्स तो पक्का नोट कर लो। आज थोड़ी ज्यादा थेरी है, कल से इतनी भी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम वाला पार्ट भी आएगा जिसमें हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है। या तो फिर थोड़ा अलग पार्ट आएगा, बट हाँ इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
Done? Okay. The next type of operating system, that is multi-programming operating system. Just tell me कि कंप्यूटर मल्टीपल जॉब्स एट ए टाइम कर सकता है कि नहीं? यस और नो? यस. ओके. यस. ओके. बट again the next question, if computer have a single microprocessor, then at the same time is it possible to execute number of processes? No. Then how you can say that a computer can do multiple tasks at the same time? Then कैसे बोल रहे हो? Now tell me again the first question. Is it possible to execute the number of processes at the same time? कंप्यूटर कर सकता है क्या? Yes or no? Yes, possible. Okay. With using the single microprocessor? Yes. By using multi-threading. Okay. तो ये मल्टी-थ्रेडिंग तो अभी नहीं पढ़ाने वाली मैं, आगे आएगा वो. बट नियर अबाउट सही है आंसर. बट उसमें और एक कंसेप्ट आता है. जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है. इसके पास एक P1 प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए गई है, तो वो एग्जीक्यूट हो रही है. ठीक है. अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते होते स्टॉप हो गई, अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते होते स्टॉप हो गई, तो फिर सीपीयू के पास काम है क्या करने के लिए? पहले वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा था, बट अभी P1 तो स्टॉप हो गई ना. देन सीपीयू आइडल नहीं बैठना चाहिए, तो वो क्या करेगा? इमीडिएटली P2 प्रोसेसर्स को ले लेगा, तो P2 प्रोसेस स्टार्ट करेगी. मान लो वो भी स्टॉप हो गई, P2 is also stop. Then it will take next process, that is P3. then फिर से क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई, और मान लो ये भी यहाँ पे पहुंच होगी. बट एट द सेम टाइम P1 प्रोसेस जो कि पहले स्टॉप हुई थी, उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट. तो सीपीयू अभी कभी आइडियल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. और पहले प्रोसेस P1 पे काम कर रहा था, एंड नाउ इट इज वर्किंग ऑन P2, एंड एट द सेम टाइम इट इज वर्किंग ऑन P3. बट सी, सीपीयू जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, वो सिंगल टाइम पे सिंगल प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट कर रहा है. देन वो मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे हुई? देन वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसे होता है कि वो इमीडिएटली दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट होता है, और उसका शिफ्टिंग का स्पीड इतना होता है कि इट लुक्स लाइक इट इज रनिंग पैरेलल. अभी जैसे मेरे पास जूम चल रहा है, पीपीटी चल रहा है, और पेंट विंडो भी चल रहा है, तीनों भी चल रहे हैं ना. तो जैसे अभी मैं पेंट विंडो में हूँ, तो मेरा जूम ऑन है, बट बैकग्राउंड में मेरा क्या है? पीपीटी भी चल रहा है. तो पीपीटी स्टॉप हो गया, अभी स्टॉप मतलब बंद नहीं किया है, बट चल रहा है, होल्ड पे है. और ये जो जूम और पेंट का दोनों का मिक्सचर चल रहा है, वो भी ऐसे ही स्विचिंग होके चल रहा है. मतलब एक बार जूम, एक बार पीपीटी, एक बार पेंट, एक बार जूम, एक बार पेंट, लाइक दैट. तो एवरी टाइम सीपीयू executes a single process in a single time.
but it looks like they are running parallel. ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अभी हम यूज करते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स सेवरल जॉब्स इन मेमोरी एट अ टाइम. दिस सेट ऑफ जॉब्स इज ए सबसेट ऑफ जॉब्स केप्ट इन द जॉब पूल. जॉब पूल से किसी एक को वो पिक करके उसको एग्जीक्यूट करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स एंड बिगिन टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब इन द memory. Then multi-programming operating system monitor the state of all active programs and system resources using memory management programs to ensure that the CPU is never idle unless there are no jobs to process. जब तक सारे के सारे जो भी जॉब्स प्रेजेंट है, जो भी प्रोसेसेस क्रिएटेड है, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक हम तब तक सीपीयू आइडियल नहीं होगा. Again, there are some advantages and disadvantages. So advantage, high and efficient CPU utilization. Then user feels that many programs are allotted CPU almost simultaneously. Almost simultaneously. Then disadvantages, CPU scheduling is required. इसके लिए CPU scheduling की जरूरत होती है. To accommodate many jobs in memory, memory management is also required. So CPU scheduling तो हम आगे देखने वाले हैं कि कैसा शेड्यूलिंग किया जाता है, कैसे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, वो पार्ट हम आगे कवर करेंगे. एंड ऑल्सो मेमोरी मैनेजमेंट भी आगे हमें देखना है. बट स्टिल दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग कंटिन्यूस. तो नोट कर लो मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे नोट करना चाहते हो, बट इसके डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. डन. यस, ओके.
So next type of operating system, that is time sharing operating system. तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सपोज I have processes P1 which needs 10 millisecond to execute. Then P2 which requires 20 millisecond to execute. मतलब उसको एग्जीक्यूशन के लिए इतना टाइम लग रहा है. Then P3 it requires 15 millisecond for execution. Then P4 it requires 90 seconds या 90 ठीक है सेकेंड्स ले लेते हैं. 90 seconds टू एग्जीक्यूट. और सीपीयू के पास फर्स्ट जा रही है, एक मिनट उल्टा हो गया, P4 जो है, एक मिनट में फिर से लिखती हूँ. P1 requires 90 seconds, P2 requires 10 seconds, P3 requires 5 seconds, P4 requires 2 seconds. 900 लिख देते चल जाएगा. तो अभी क्या होगा? अभी अगर मेरा सीक्वेंस ऐसा ही है, सीक्वेंस एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो एज इट इज P1 P2 P3 P4 ऐसा ही है, तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस जाएगी सीपीयू के पास फॉर इट्स एग्जीक्यूशन? P1 प्रोसेस जाएगी, राइट. देन P1 प्रोसेस को जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है? 900 सेकेंड. तो पूरा 900 सेकेंड वो एग्जीक्यूट करेगी. और जब उसका 900 सेकेंड खत्म हो जाएगा, देन वो क्या करेगी? नेक्स्ट प्रोसेस जो भी है उसको सीपीयू अलोकेट करके दे देगी, राइट. एक मिनट मैं चार्जर जरा कनेक्ट करती हूँ. यस. तो 900 सेकेंड तक ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये P1 के पास रहेगा. देन 900 सेकेंड के बाद वो मिलेगा P2 को. देन अगेन 10 सेकेंड के बाद मिलेगा, 900 के बाद 10 ना, मतलब 1000 हो गए. 1000 के बाद मिलेगा P3 को 5 सेकेंड. और फिर से 1005 हो गए ना अभी. 1005 के बाद मिलेगा P4 को, जिसको सिर्फ चाहिए 2 सेकेंड. जिसको चाहिए सिर्फ 2 सेकेंड उसको प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी थी. बट स्टिल इट नीड्स टू वेट until and unless these processes are executed. जैसे इसका एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें सिर्फ रिपोर्ट दिखाना होता है और वहां पे बहुत बड़ी लाइन होती है. तो हमें क्या लगता है कि अरे मुझे मुझे तो सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, रिपोर्ट चेक करवाना है और फिर जाना है. तो मैं एक गो ऐसा पूछ लेते हो आप कि मुझे सिर्फ रिपोर्ट के लिए जाना है तो मैं जा सकता हूँ क्या? तो वो क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी क्यू है और आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर्स. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है कि इसको कम टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, बट स्टिल पहले P1 P2 P3 है.
और उनका टाइम चाहे क्यों ना ज्यादा हो, बट वो वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो अननेसेसरी P4 को इतना वेट करना पड़ रहा है। P4 is waiting unnecessarily only for 2 seconds. So to avoid this situation, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम आप सेट कर दो, एंड एवरी प्रोसेस विल एग्जीक्यूट विद इन दैट टाइम ओनली। आप 10 सेकेंड का एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो, एंड एवरी प्रोसेस विल एग्जीक्यूट विद इन दैट 10 seconds. Then what about P1 then? P1 requires 900 seconds, na? Right? So after completing all processes, again processor आप इसको दे दो P1 को। तो क्या होगा? 10 सेकेंड में P1 जितना एग्जीक्यूट करता है उतना कर लेगा, देन P2 को भी इमीडिएटली मिलेगा, P3 को भी मिलेगा, एंड देन P4 को भी मिलेगा। तो वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। और ये जो हमने टाइम सेट किया 10 सेकेंड्स का, दिस इज नोन एज क्वांटम। दिस इज नोन एज क्वांटम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? Each task has given some time to execute so that all the tasks work smoothly. Each user gets time of CPU as they use single system. This is known as multitasking system. क्यों मल्टीटास्किंग? बिकॉज अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने स्विचिंग का कंसेप्ट आपको बताया था कि वो एक से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, शिफ्ट स्विच होते होते, तो यहाँ पे सभी टास्क को वो वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूजर और फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स ऑल्सो। Each time that the time that each task gets to execute is called quantum. And after this time interval is over, OS switches over to next task. Clear? then इसके भी advantages भी है, disadvantage भी है। Each task gets an equal opportunity. This is main advantage. Less chances of duplication of software. CPU idle time can be reduced, ये तो है ही। Then disadvantage में क्या है मेन? रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। क्योंकि जब 900 सेकेंड का प्रोसेस है, तो उसको 10 मिली सेकंड 10 मिली सेकंड ऐसे करते करते 90 टाइम्स एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड एवरी टाइम इट शुड नो कि व्हाट पार्ट executed previously and which part is still remaining. That is called reliability problem. Then one must have to take care of security and integrity of user programs and data. डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी फिर से वही है कि स्विचिंग कर रहे हो तो कुछ डेटा लॉस हो रहा है क्या, कितना डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो सब सारी चीजें वहां पे कंसिडर करनी पड़ती है। सो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी को लेके भी इश्यू क्रिएट हो सकता है। देन डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वाला एक पॉइंट नोट कर लो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम, और द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड एज क्वांटम। क्वांटम पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था एक।
और ये भी पॉइंट नोट कर लो, रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम है और सिक्योरिटी इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है। डन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये क्या होती है वो पहले बताती हूँ मैं। तो सी, if we have number of computers एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कंप्यूटर की, एक तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, हार्ड डिस्क ड्राइव होनी चाहिए, रैम होना चाहिए, राइट। बट हियर some computers are like this, only microprocessor and RAM is present. Only microprocessor and RAM is present. Now the question is again same, अगर माइक्रो प्रोसेसर और रैम है उसके पास तो वो ऑन कैसे होंगे? ऑन हो जाएंगे, क्योंकि बट वो दिखेगा क्या, ऑन हो जाएंगे, बट शो करने के लिए उसके पास कुछ होगा क्या? नो। वाई? क्यों नहीं होगा उसके पास कुछ भी? बिकॉज
एज वी सीन बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसमें क्या होता था कि जब कंप्यूटर ऑन होता है एट दैट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव टू रैम। बट यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि इसके पास हार्ड डिस्क ड्राइव तो है ही नहीं, इसके पास है एक कंप्यूटर के पास, तो ये ऑन हो जाएगा। बट इन लोगों के पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है ना उनके मशीन में, तो वो कैसे ऑन करेंगे? तो फॉर दैट पर्पस देर इज one centralized operating system which we call as a distributed operating system. Distributed operating system. So when our computer is going to start, at that time it will take help of this distributed operating system and start the machine. तो जो बूटिंग की प्रोसेस है वहां पे इसी की मदद से वो बूटिंग कर लेंगे। एंड आफ्टर वंस बूटिंग गेट्स ओवर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसी के पास है ना, रैम पे लोड हो गई तो आ गई ना, देन इट कैन इजीली एक्सेस, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विल गिव्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एवरी कंप्यूटर, then every computer is able to access that same type of operating system। तो जो भी एरर्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कम हो जाते हैं, रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस। बट अगेन सेम प्रॉब्लम की इफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इट गेट्स डाउन, देन किसी भी मशीन को किसी काइंड की हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास नहीं है, तो वो मशीन ही नहीं ऑन होंगे ना अगर ये लैप्स हो गया तो जैसे इसके एडवांटेज है कि कॉमन में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा तो उसको अपडेट करना है या फिर उसको कुछ सर्विसेज ऐड करनी है, कुछ डिलीट करनी है, देन वो इजी हो जाता है, राइट। बट अगर वो लैप्स हो गया तो, और उसकी जो लैंग्वेज है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी लैंग्वेज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन it is not as much used in India, वो इतना यूज नहीं कर रहे और उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है। क्लियर? तो बूटिंग के लिए जो लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे ये यहाँ से लोड कर लेगा। तो लेट्स सी, so this type of operating system is recent advancement in the world of computer technology and are being widely accepted all over the world. Various autonomous interconnected computers communicate each other using a shared communication network. Independent system possess their own memory unit and CPU. तो इसके पास मेमोरी यूनिट है और सीपीयू है, बट हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है। These are referred as loosely coupled system. This is very, very, very important point. Or distributed system. These systems processors differs in size and functions. The major benefit of working with this type of operating system is that it is always possible that one user can access the files or softwares which are not actually present on his system but on the some other system connected within this network. That is, remote access is enabled within the devices connected in that network. तो किसी और के मशीन पे भी प्रेजेंट है फाइल, या मशीन पे तो प्रेजेंट नहीं होगी बट किसी और लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इन केस अगर हार्ड डिस्क उसके पास है तो वो कुछ स्टोर भी करके रख सकता है, बट नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, देन इसके एडवांटेजेस आर ऑल्सो देयर एंड डिसएडवांटेजेस आर। तो सी दिस इज द डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, disk and memory. Some computers have the same and some having the CPU and memory only. Advantages: failure of one will not affect the other network communication as all systems are independently
फ्रॉम ईच अदर। तो एडवांटेज में क्या है कि किसी एक सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो दूसरे पे अफेक्ट नहीं करेगा, वो एक ही बंद हो जाएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीजेस द डेटा एक्सचेंज स्पीड। सिंस रिसोर्सेस आर बीइंग शेयर्ड, कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल। रिसोर्सेस को, अभी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो भी हमें इंस्टॉल करना है वो सेंटर में ही करना है ना। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस। These systems are easily scalable as many systems can be easily added to the network. Delay in data processing reduces. If you want to increase the number of machines, then we can able to increase. If you want to decrease the number of machines, then we can easily decrease. Then disadvantages, failure of main network will stop the entire communication. Failure of main network will stop the entire communication. To establish distributed system, the language which are used are not well defined yet. वो अब तक इतने अच्छे से डिफाइंड नहीं है. These types of systems are not readily available as they are very expensive. Not only that, the underlying software is highly complex and not understood well at. एक्सपेंसिव भी है, लैंग्वेज भी उसकी इतनी, लैंग्वेज भी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड एट द सेम टाइम फेल्योर ऑफ मेन नेटवर्क विल स्टॉप एंटायर कम्युनिकेशन. So these are the main disadvantages of distributed operating system. And if you are more interested in this, then you can check the locus operating system. Clear? So just note down this point. It is called as a loosely coupled system. बिकॉज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका अपोजिट होगा. ये एक ही पॉइंट नोट कर लो, देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. यस, इसमें शॉर्ट में जो करना है वो नोट कर लो, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है. इसका एग्जाम्पल भी नोट कर लो, लोकस. डन. डन. यस, ओके. सो द नेक्स्ट टाइप, network operating system. So it is physically same like a distributed operating system, but logically it is totally different. So see, okay, then in every computer it have
its own operating system. HTD. Okay. And it have their own hard disk drive and their own operating system also. It may be vary कि इसमें विंडोज 10 हो सकता है, इसमें विंडोज 11, इसमें लिनक्स हो सकता है, इसमें उबंटू हो सकता है. तो इट वैरीज, but still they all are connected to centralized machine. मशीन बोल रही हूँ मैं. Centralized machine. And this machine is known as server. This machine is known as server. तो ये जो है, इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है. व्हाई? बिकॉज all computers have their own independent operating system, but still they are under control of this server. And if any client machine, this is called server, and the computers which are connected to that is known as client. And if that client requires anything, means if they want to switch on any service, or they want to change some internal connections or something, then it requires to take the help of server. So these all are under the control of server. तो ये होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क थ्रू ये कनेक्टेड है, फिजिकली ऐसा नहीं है कनेक्शन. इट इज लॉजिकल कनेक्शन. इवन दो these all computers get the IP address from this server only. क्लियर? तो दिस इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसको हम फिर से इलैबोरेट करके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टाइम पे देखने वाले हैं. क्या होता है एक्चुअल में, इसकी सर्विसेज कौन कौन सी होती है. बट इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. So these systems runs on server and provide the capability to manage data, users, group, security applications and other networking functions. तो यहाँ पे सर्वर जो होता है, in that server we can able to create the users. और companies में, net cafes में, campus में, anywhere if you see, then same type of operating system you can identify. These type of operating system allow shared access of files, printers, security, application and other networking functions over a small private network. Then important aspect of network operating system is that all the users are well aware of underlying configuration of all other users within the network, their individual connections, etc. And that's why these computers are popularly known as tightly coupled. Tightly coupled क्यों बोला गया इसको? Because everything of client is under the control of this server. If they want to add any input output devices, then it need to take permission from this server. And because of that, it is known as tightly coupled system. So again, there are some advantages and disadvantages. So it is highly stable centralized server. Security concerns are handled through the servers. New technology and hardware upgradation are easily integrated to the system. Server access are possible remotely from different locations and types of system. So these are some basic advantages. And if you talk about the disadvantages, then servers are costly. Servers means servers are basically same like our computer, but with high configuration and with different operating system. Server की अलग से operating system आती है, which is costly. Users has to depend on central location for most of the operations. Then maintenance and updates are requires regularly. क्योंकि सारे के सारे clients if they are dependent on centralized server, then उन सबको अपडेट्स प्रोवाइड करने के लिए या तो फिर प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए रेगुलरली अपडेट्स करने पड़ते हैं. So these are the disadvantages of network operating system. And the examples, यहाँ पे विंडोज सर्वर 3, 8,
लिनक्स का है, मैक ओएस है, इतना ही दिया है, बट नाउ अडेज विंडोज सर्वर 2022 यूज में है। 16 12 था, 16 था, नाउ अडेज 12 यूज कर रहे, 22 यूज कर रहे, सॉरी, विंडोज सर्वर 22। तो उसमें भी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स इंक्रीज हुए हैं, बाकी फंक्शनलिटी सेम है, एंड स्पीड भी विंडोज सर्वर 2022 का हाई है। क्लियर है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको फिर से एक बार हमें देखना है वापस से। So just note down key. It is known as tightly coupled system because previous one distributed operating system is known as loosely coupled and this is tightly coupled. And reason tightly coupled system क्यों बोला गया है? Because most of the operations के लिए clients are depend on the server. So note down these points. Okay, if you have any doubt, then ask. Done till here? Yes. Okay. Okay. So revise all the things whichever we learned today. Tomorrow we'll see one type of operating system is remaining, that is time, real time. Real time operating system is remaining. So we'll continue with that point on tomorrow. So again tomorrow same timing होगा. So you can join at 11:15. ठीक है? And just read out the things whichever we learned today. And if you have any doubts, then just note down it and ask me tomorrow. ठीक है? चलो. Bye bye then. Have a nice day. See you tomorrow.